John Fitzgerald Kennedy by B.K. Nehru. Readings and Analysis. On November 22nd, 1963, on a clear, cheerful, sunny, and peaceful day, I was attending a luncheon party at Washington Embassy. तो ये जो दिन है, this is a very important day in the history of United States of America and very tragic day as well because this was the day when uh, John F. Kennedy or John Fitzgerald Kennedy was assassinated, and B.K. Nehru was attending a party at Washington Embassy. We had only just started the meal when someone came from outside and whispered into the ear of Senator Herbert Humphrey. कोई बाहर से आया, वो उन्होंने लंच स्टार्ट ही किया था एंड हर्बर्ट हम्फ्री के कान में किसी ने बताया एंड ही गॉट अप सेइंग माय गॉड एंड लेफ्ट द रूम. We learned that there had been an attack on the life of President of the United States, but we did not know then whether he had actually been wounded. अटैक की न्यूज़ आई थी उस टाइम पे बस, पर इतना कोई क्लियर नहीं था कि whether he has been actually wounded, क्या उनको कोई इंजरी आई है या नहीं. It was not long before we learned that he had been wounded seriously, and moments after that he was dead. और जल्दी ही फिर उनको पता चल गया कि he was seriously wounded and कुछ पलों में ही he died. There was not a single dry eye, native or foreign, around that table as we slowly took leave of each other, mourning within ourselves at the great tragedy that had befallen us all. वहाँ पे कोई भी सिंगल ड्राई आई नहीं थी, नेटिव और फॉरेन, ना कोई अमेरिकन और बाकी फॉरेन जितने डिप्लोमेट्स थे उस जगह पे, दे वर ऑल वेरी सैड एंड सम वर इवन क्राइंग एंड दे वर मॉर्निंग विद इन. मॉर्निंग, MOURNING. Mourning means when we are in a state of sorrow when somebody has died. Next paragraph. There was nobody one could have connected less with the coldness of death than Jack Kennedy. He was the very embodiment of life. Young, vigorous, gay, alert, eloquent, handsome, elegant, graceful, charming, urbane, and exuding vitality. तो फर्स्ट लाइन, देयर वॉज नो बडी वन कुड हैव कनेक्टेड लेस विद द कोल्डनेस ऑफ डेथ. मतलब ये रिवर्स सेंटेंस में यूज किया हुआ है कि इस तरीके से ये सेंटेंस है कि इसका ऑपोजिट इज ट्रू, विच मीन्स ही वॉज फिल्ड विद जो इसने ये आगे एडजेक्टिव यूज किए, यंग था, विग्रस था, एनर्जेटिक था, मतलब हैप्पी रहता था हमेशा, अलर्ट, इलोक्वेंट मतलब अपने व्यूज को बहुत रेडली एक्सप्रेस करता था, हैंडसम, एलिगेंट, ग्रेसफुल, ये सारी चीजें थी. उस पहले सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि ये वाला अगला सेंटेंस और ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाता है, नहीं तो इतने ज़्यादा हम एक जगह पे एक सेंटेंस में इतने एडजेक्टिव हम यूज़ नहीं करते. बट ही वाज सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, all the adjectives belong to him. The death by assassination of any great figure would have shocked the world, but that an assassination's assassin's bullet should have ended a life that was so young and so promising, not only for his own country, but for the world, was a shock too difficult to bear. एक तो किसी कंट्री के हेड की डेथ होना ही एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ होती है कि बुलेट इंजरी से किसी ने उसकी असैसिनेशन की हो, बट इतने यंग एज में व्हेन समबडी डाइड, इट इज़ it becomes very difficult to bear because he was a very promising politician as well and a statesman. Statesman वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए. statesman
व्हिच मीन्स एक ऐसा पॉलिटिशियन जो कि विज़नरी हो, जिसके आइडियाज़ सिर्फ़ अपनी कंट्री को लेके या अपने टाइम को लेके नहीं, फ्यूचर को लेके और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हों। The grief at the death of the president was not limited to the United States. There started coming into Washington to attend funeral emperors, kings, presidents, prime ministers, and representatives from all over the globe. सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स तक लिमिटेड नहीं रही उसकी डेथ, बाकी देशों से फ्यूनरल अटेंड करने के लिए एम्परर, किंग्स, प्रेसिडेंट ये सारे उन्होंने अटेंड करना शुरू किया। फर्स्ट बिकॉज ही वॉज the president of United States, the one of the most important countries, 1963 में भी 1963 में uh, उस टाइम पे यूएसएसआर था, रशिया वाज अ बिग पावर, बट अमेरिका सर्टनली वाज नंबर वन। अब उसकी जो पोजीशन है उतनी बड़ी पोजीशन नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे यूएसएसआर चैलेंज कर रहा था, अब तो कोई चैलेंज करने वाला भी नहीं है। बट फिर भी ही वाज सच अ पॉपुलर पर्सन, उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से, उसके पर्सनल कनेक्ट की वजह से भी ये सब लोग उससे अपने रिस्पेक्ट पे करने, उसके फ्यूनरल पे अटेंड करने आ रहे थे सारे। नेक्स्ट पैराग्राफ। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ वेरी पावरफुल मैन। ही इज वन ऑफ द two human beings who can, by pressing a button, destroy the world and extinguish the human race. He presides over a country whose military and industrial power and economic strength is equal to that of the rest of the world combined. तो इतना पावरफुल पर्सन है कि उसके पास बटन किस चीज़ की बात हो रही है, ये है एटॉमिक बॉम्ब के बटन की। और वन ऑफ द टू, एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा शायद वहाँ पे, और दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। दो लोग बटन दबाएंगे, ओनली देन कोई मिसाइल फायर की जा सकती है जिससे वो एटॉमिक अटैक होगा किसी भी देश पे। एंड ही प्रिजाइड्स अ कंट्री जिसकी मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल पावर एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पूरे वर्ल्ड के को कंबाइन अगर कर लें तो उसके बराबर होती है। पीपल फियर पावर एंड दे रिस्पेक्ट पावर, बट द पावरफुल आर नॉट नेसेसरली लव्ड। लोग पावर से डरते भी हैं, पावर की रिस्पेक्ट भी करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि पावरफुल लोगों को प्यार भी किया जा सके। The great gathering of world figures did not come to Washington because President Kennedy was a powerful man, nor did the anonymous millions of the world shed tears and mourn his passing away because he was a powerful figure. तो इतने पॉलिटिशियन, बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े पॉलिटिकल फिगर्स दूसरे देशों से सिर्फ इसलिए नहीं आए थे कि वो पावरफुल मैन था, जहाँ लोग भी इसलिए नहीं दुखी थे क्योंकि वो एक पावरफुल इंसान था। नॉर डिड द मिलियंस ऑफ द वर्ल्ड, वो भी इसलिए दुखी नहीं हुए क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल फिगर फिगर था। People mourned in their homes and their hamlets, and they came to Washington because they loved जैक कैनेडी, ये उनका दूसरा नाम है जॉन एफ कैनेडी का, जैक कैनेडी। एंड दे लव्ड जैक कैनेडी बिकॉज जैक कैनेडी हैड demonstrated from the way he had spoken and the way he had acted that he loved them. उसने अपने एक्शन से और अपने वर्ड से लोगों को कन्विंस किया था कि दैट ही लव्ड देम, एंड दैट इज़ व्हाई पीपल लव्ड हिम बैक। और अपने-अपने छोटे-छोटे गाँव से, हैमलेट एक छोटा-सा गाँव हो सकता है, एंड बहुत दूर-दूर से लोग वहाँ वॉशिंगटन में भी पहुँचे और अपनी जगह पे जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे भी। दे वर मॉर्निंग बिकॉज़ ही कन्विंस्ड देम दैट ही रिस्पेक्टेड एंड लव्ड देम, एंड ही हैड गिवन होप टू अ fear-ridden, frustrated, poverty-stricken वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब रिकंस्ट्रक्शन चल रही थी वर्ल्ड की उस टाइम पे, और एक कोल्ड वॉर चल रही थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की
यूएसएसआर के साथ, उस टाइम पे ही केम एज अ होप फॉर फियर रिडन, डर से भरे हुए, फ्रस्ट्रेटेड एंड पॉवर्टी स्टिकन वर्ल्ड, होप दैट द पीस वुड नॉट बी ब्रोकन, होप दैट पीस वुड नॉट बी ब्रोकन, कि जो शांति अब कायम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो कभी शांति टूटेगी नहीं, होप दैट इंडिपेंडेंस ऑफ नेशंस वुड बी सेफ गार्डेड, होप दैट मिजरी कॉज्ड बाय पॉवर्टी वुड बी एंडेड। ये सारी उम्मीदें थी लोगों को उसके साथ, एंड ये उम्मीदें भी उसके लिए रिस्पेक्ट और प्यार से भर रही थी लोगों को। नेक्स्ट पैराग्राफ। In the world of separate national sovereignties in which we live, the loyalties of national leaders are perforce often limited to their own nation. तो जो जिस संसार में हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, सेपरेट नेशनल सोवरेनिटी, सोवरेनिटी पॉलिटिकल साइंस की टर्म है, इसका मतलब होता है कि किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में एक गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कानून बना सकती है, उनको लागू कर सकती है और उसके ऊपर उस गवर्नमेंट के ऊपर किसी आउटसाइड पावर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी की कोई दखल-अंदाज़ी नहीं है। तो हिंदी में न्यूज़ में भी एकता और प्रभुसत्ता जब हम टर्म्स यूज़ करते हैं हिंदी न्यूज़ में, तो प्रभुसत्ता इज़ सॉवरेनिटी, कि उस ज्योग्राफिकल एरिया में एक सरकार है, वो इलेक्टेड भी हो सकती है, किंगशिप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर उस सरकार की जो पावर है, वो उस एरिया में उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कानून हैं, लॉज़ हैं, सब कुछ वो डिसाइड करती है एंड वो एग्ज़ीक्यूट करती है उनको, और कोई आउटसाइड पावर उसको इन्फ्लुएंस नहीं करती, किसी के दबाव में आके वो कोई काम नहीं करती। तो इन द वर्ल्ड ऑफ सेपरेट नेशनल सॉवरेनिटीज़, जैसे इंडिया एक देश था, इंडिया पाकिस्तान बनने के बाद 2 अलग-अलग नेशनल सॉवरेनिटीज़ बन गई, जिनका एक-दूसरे में कोई दखल-अंदाज़ी नहीं थी, और ब्रिटिश की भी नहीं थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट बना। तो सेपरेट नेशनल आइडेंटिटीज़ इन व्हिच वी लिव, द लॉयल्टीज़ ऑफ नेशनल लीडर्स आर परफॉर्स ऑफन लिमिटेड टू देयर ओन नेशन। ऐसे माहौल में हर देश के जो लीडर हैं, अपने देश के लिए लॉयल होंगे, दूसरे देश के लिए नहीं। But the vision of Jack Kennedy, like that of Jawaharlal Nehru, went far beyond his own nation and embraced the whole human race. अब बीके नेहरू उसको जैक कैनेडी को कंपेयर कर रहा है जवाहरलाल नेहरू के साथ, दैट उनका विजन जवाहरलाल नेहरू की तरह ऐसा था कि वो एम्ब्रेस द होल ह्यूमन रेस, कि वो सारे ह्यूमन रेस को अपना रहे थे, अपने सिर्फ अपनी नेशन को लिए चिंतित नहीं रहते थे, पूरी ह्यूमन रेस के लिए चिंतित रहते थे। द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हैड स्पोकन आउट नॉट ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिकन्स अलोन बट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मैनकाइंड। जब अमेरिका आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे भी जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, बीके नेहरू इज़ रेफरिंग टू दैट, कि उसमें भी सिर्फ अमेरिकन्स के बारे में बात नहीं थी, पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में, मैनकाइंड के बा को रेफ़र किया गया था उसमें। तो पूरी जो इंडिपेंडेंस है, मतलब वो पूरे ह्यूमैनिटी की इंडिपेंडेंस उनके लिए एक आइडियल था, आदर्श था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। The spirit of the American Revolution had long inspired all nations who suffered from political and economic injustice. तो बहुत सारे देशों में पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस जहाँ-जहाँ लोगों को फेस करना पड़ रहा है, अमेरिकन रेवोल्यूशन ने उनकी उसकी स्पिरिट ने, उसकी जो मूल भावना है, उसके पीछे उसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। But the revolutionary image of America had over the years been dimmed. Jack Kennedy caught the imagination of men and women everywhere because he made them feel that America's concern for the rights of man was not less now than at the time of its own war of independence. 44-45 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, उसके बाद के सालों में
ये उसको रेफ़र किया जा रहा है कि वो काफ़ी रेवोल्यूशनरी इमेज जो अमेरिका की थी वो डिम हो रही थी, पर जॉन एफ कैनेडी ने उस इमेज को दोबारा अच्छा बनाने की कोशिश की पूरी दुनिया में और लोगों को कन्विंस किया कि जो राइट्स ऑफ मैन है, विच वी कैन आल्सो कॉल ह्यूमन राइट्स, वो उतने ही इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए जितने अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे थे। Next paragraph. Kennedy wanted peace, and while recognizing fully that military weakness was hardly an adequate base from which to start the pursuit of peace, he realized that military strength alone was not its sufficient guarantor. He wanted peace, और उसने ये तो रियलाइज़ कर लिया था कि मिलिट्री वीकनेस से पीस हासिल कभी नहीं की जा सकती। पर उसने ये भी रियलाइज़ किया था कि सिर्फ़ मिलिट्री पावर एक गारंटी नहीं दे सकती कि पीस अवेलेबल होगी या पीस हमेशा रहेगी। लेट अस नॉट नेगोशिएट आउट ऑफ फियर, ही सेड, बट लेट अस नेगोशिएट फियर लेट अस नेवर फियर टू नेगोशिएट। लेट अस नॉट नेगोशिएट आउट ऑफ फियर। हमें किसी लड़ाई से, किसी के हमारे ऊपर हमले के डर से नेगोशिएशन नहीं करनी चाहिए उसके साथ, किसी भी देश के साथ या किसी भी पावर के साथ, बट लेट अस नेवर फियर टू नेगोशिएट। और हमें कभी भी नेगोशिएट करने से डरना नहीं चाहिए। डर की वजह से नेगोशिएशन नहीं करनी, पर नेगोशिएशन से डरना भी नहीं है। The problems of the world had grown too difficult and the condition of the world too complex for any imposed solution. तो प्रॉब्लम्स काफ़ी कम्प्लेक्स हो रही थी, वर्ल्ड की हो रही हैं जैसे अभी भी हैं, और कोई भी कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड टू कम्प्लेक्स फॉर इम्पोज सॉल्यूशन, कोई भी इम्पोज्ड सॉल्यूशन ज़बरदस्ती से थोपा गया कोई सॉल्यूशन, ज़बरदस्ती से थोपा गया कोई डिसीजन किसी भी अनसर्टेनिटी को लेके, जहाँ पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है किसी देश में, वो लंबे टाइम तक कायम नहीं रह सकता। कि कई अगर किसी 2 देशों में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अगर बाहर वाली पावर कोई मिलिट्री का डर दिखा के, अगर जैसे इंडिया और पाकिस्तान के केस में, अगर इंडिया को डराने की कोशिश करे अमेरिका की पाकिस्तान के केस में, तो कितने लंबे तम टाइम तक वो डरा सकेंगे। तो वही भावना है इस सेंटेंस में, इस कैनेडी के थॉट में भी, कि हम मिलिट्री के दम पे लंबे टाइम तक अपनी लेजिटिमेसी भी कायम नहीं रख सकेंगे। There can no longer be an American solution for all problems, he answered, in response to those who argued that America's great power should be used to fashion the world to Americans' liking. किसी ने कहा था कि उनसे कि अमेरिका को जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम, जहाँ अपने वैल्यू सिस्टम अच्छे लगते हैं, उस तरीके से उनको करना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, कि वैसा ही होना चाहिए। देन उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड किया है कैनेडी ने कि देयर कैन नो लॉन्गर बी एन अमेरिकन सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। संसार की, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स के लिए कोई एक अमेरिकन सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अमेरिकन सॉल्यूशन की मतलब जो अमेरिका को अच्छा लग रहा हो, वही सॉल्यूशन एप्लीकेबल नहीं हो सकता। To him, non-alignment and neutrality, as it is still called in the United States, in the conflict between the great powers was by no means immoral. तो उसके लिए नॉन अलाइनमेंट का मतलब है, अगर 2 पावर्स, 2 देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो वो किसी एक का भी साथ नहीं देना। वो है नॉन अलाइनमेंट। और न्यूट्रैलिटी, न्यूट्रल रहेंगे, दोनों के साथ ना किसी की हेल्प करेंगे, ना किसी के अगेंस्ट काम करेंगे। एज़ इट इज़ स्टिल कॉल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रेट पावर्स वाज़ बाय नो मीन्स इमोरल, कि 2 देश लड़ रहे हैं, तो दोनों में किसी का भी साथ नहीं देना, दोनों में किसी को भी अपोज़ करना नहीं करना,
उसके लिए कभी भी इमोरल एक्ट नहीं था। जैसे कुछ देशों की लड़ाई हो रही हो आपस में, तो प्रेज़ेंटली भी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है और इंडिया जैसे दोनों के साथ पास्ट में भी अच्छे रिलेशन रहे हैं और इसलिए दोनों में इंटरफियर नहीं कर रहा। किसी देश को ये नहीं बोल रहा कि तुम ये करो तब या तुम वो करो। इस चीज़ को बोलते हैं हम नॉन अलाइनमेंट या न्यूट्रैलिटी। He recognized that this policy was in the interests of the emerging world, that the United States itself had, in its earlier history, followed a policy of avoiding foreign entanglements, and that in present conditions, the exercise of independent judgment in international affairs by militarily weak powers was helpful in easing of international tensions. तो जो इमर्जिंग वर्ल्ड है उस टाइम पे जैसे बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दे वर ऑल डेवलपिंग, रैपिड डेवलपमेंट चल रही थी उनके उन देशों में और बॉर्डर्स को लेके पड़ोसी देशों के कॉन्फ्लिक्ट होते थे बहुत सारे। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स में जैसे अमेरिका की वर्ल्ड वॉर से पहले की पॉलिसी थी नॉन इंटरवेंशनिस्ट कि इंटरवीन नहीं करते थे किसी में, अवॉइड करते थे फॉरेन एंटेंगलमेंट को। फॉरेन एंटेंगलमेंट कि 2 फॉरेन कंट्रीज़ आपस में उनका कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें ये अपने तरफ से कोई किसी को कोई फ़ोर्स नहीं करते थे, कोई डिसीज़न लेने के लिए। तो वही पॉलिसी अकॉर्डिंग टू जॉन एफ कैनेडी वाज़ हेल्पफुल इंटरनेशनल रिलेशंस को रिज़ॉल्व करने में, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व करने में। क्योंकि अगर कोई पावर किसी एक देश के साथ खड़ी रहेगी तो दूसरा देश फिर दूसरी पावर के पास जाएगा। तो इससे उन 2 छोटे देशों में एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा और वो और बड़े हथियार ले लेके एक-दूसरे के साथ लड़ाई करते रहेंगे। पर अगर बड़ी-बड़ी पावर्स दूर रह के उनको बोलें कि आपस में नेगोशिएट करके वो अपने कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व करें, तो टेंशन्स इंटरनेशनल लेवल पे कम रहेंगी। What he wanted from the uncommitted world was a commitment to the maintenance of its own freedom. And in the maintenance of that freedom, he was willing to unstingingly to help. तो अनकमिटेड वर्ल्ड से वो चाहता था अनकमिटेड किसी एक साइड से जो कमिटेड ना हो उस वर्ल्ड से एक कमिटमेंट चाहता था कि टू द मेंटेनेंस ऑफ इट्स ओन फ्रीडम कि वो वर्ल्ड अपनी फ्रीडम को मेंटेन रखे। वो मेंटेन कैसे रहेगी? अगर हम हर देश इंडिविजुअल देश दूसरे देश की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करता है तभी ओवरऑल उसकी अपनी भी जो फ्रीडम है वो मेंटेन रहेगी। और इस फ्रीडम के को मेंटेन करने के लिए ही वाज़ विलिंग तो अनकंडीशनली ही वाज़ विलिंग टू हेल्प ऑल द नेशंस कि वो अपनी फ्रीडम को मेंटेन रखने के लिए दूसरों की फ्रीडम का रिस्पेक्ट करें। He gave abundant proof of this when we were invaded by China. उसने इस बात का बहुत अच्छा प्रूफ दिया था जब इंडिया के ऊपर चाइना ने अटैक किया था। He recognized very clearly that political independence meant little without economic independence. और उन्होंने ये भी इंडिपेंडेंस रियलाइज़ किया था कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक किसी भी देश के पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। ही हैड बीन पावरफुली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीमिटी टू व्हिच पॉवर्टी हैड रीच्ड अमंग टू थर्ड्स ऑफ वर्ल्ड्स पीपल्स। तो दुनिया के 2 तिहाई लोग गरीबी में थे और उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा विचलित थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। He knew that it was morally wrong that this poverty should continue. Morally अ, मॉरल्स के लेवल पे भी वो गलत था कि ये लोग गरीब रहें और बाकी लोग जो 1/3 हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर रहें और 2/3 बहुत ज़्यादा गरीब रहें।
He knew that its existence was politically dangerous, and he knew also that the world today had wherewithal to conquer this poverty if mankind set its heart to this goal. और उनको पता था कि पॉलिटिकली डेंजरस है ये वाली कंडीशन। और जब लोग बहुत सारे पॉवर्टी में, क्योंकि पॉवर्टी में होंगे तो रेस्टलेसनेस होगी, तो क्राइम बढ़ेगा, और वो क्राइम छोटे लेवल से बड़े लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक भी फैल सकता है। एंड क्योंकि रिसोर्सेज के लिए एक देश दूसरे देश से भी लड़ाई करनी शुरू कर देंगे, तो वो वॉर, टू वर्ल्ड वॉर तो हो चुकी थी, और तीसरी की भी फिर पॉसिबिलिटी थी। एंड सेकंडली ही आल्सो न्यू कि वर्ल्ड के पास सारी नो हाउ वेयर विद ऑल की मीन्स सारे रिसोर्सेज हैं जिन जिनसे पॉवर्टी को कॉन्कर किया जा सकता है। Then man holds in his moral hands, he said, the power to abolish all forms of human poverty. अपने मॉर्टल हैंड्स में, मॉर्टल जो इंसान के लिए यूज़ किया जाता है, सभी जीवित लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, मॉर्टल बीइंग्स, मॉर्टल जिसकी डेथ हो जाती है, मतलब जो पैदा हुआ है उसने मरना ही है, तो उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। पर मैन की मतलब लिमिटेड स्कोप है हर इंसान की ज़िंदगी का, पर फिर भी हर इंसान के पास पावर है टू अबॉलिश ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी। जैक कैनेडी अंडरस्टूड एज few people do the importance of foreign aid, what it was meant to do, and how it should be organized. बहुत कम लोग थे, उनमें से जैक कैनेडी एक थे जो समझते थे कि फॉरेन एड किसी भी देश को दूसरे देश को की जाने वाली मदद को बोलते हैं फॉरेन एड। बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड व्हाट इट इज़ मेंट टू डू, इससे फॉरेन एड को किस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए और इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ही अटेम्प्टेड दो द He attempted, though the attempt was only partially successful, to put the American foreign aid program on a rational basis, and he founded the Alliance for Progress in Latin America. उसने अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और पार्शियली सक्सीड किया वो लैटिन अमेरिका में इसको अप्लाई करने में, और उसके लिए अलायंस फॉर प्रोग्रेस इन लैटिन अमेरिका नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी। I remember saying to him once in the early part of 1960 that I did not quite understand how he, being a candidate for the presidency and knowing that the foreign aid program was so unpopular, could afford to support it as uncompromisingly as he did. एंड बी कैनेरो सेज कि जब वो 1960 में अपने कैनेडी अपने कैंपेन में थे, प्रेसिडेंट बनने के लिए कैंपेन कर रहे थे, तब उन्होंने पूछा था कैनेडी से कि इतना अनपॉपुलर है फॉरेन एड वो का जो आइडिया है, क्योंकि फॉरेन एड में इन अमेरिका का पैसा दूसरे देशों को दिया जाएगा। तो चाहे डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा, पर सारे लोग जो खासकर जिनके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कम है या जॉब नहीं है, तो उन वैसे लोगों के लिए तो वो उनको तो अच्छी नहीं लगेगी ये पॉलिसी। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो थी उसको भी पसंद नहीं थी। तो वो बहुत अनपॉपुलर आइडिया था आम लोगों में। तो बीके नेहरू ने उनसे ये पूछा कि आप इतने अनपॉपुलर आइडिया को इतने स्ट्रांगली कैसे सपोर्ट कर सकते हो? एंड हिज आंसर वाज कैरेक्टरिस्टिक टू ऑफ द मैन। मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैन मतलब वो जिस तरीके से आंसर देते थे अपने कैरेक्टर के अनुसार, अपने बिहेवियर के, अपने पास्ट रिकॉर्ड के अनुसार ही उन्होंने आंसर दिया। ही सेड दैट ही वाज फॉर फॉरेन एड बिकॉज इट वाज राइट। ही वाज फॉर फॉरेन एड, ही सपोर्टेड फॉरेन एड क्योंकि इट वाज राइट, ये सही चीज थी। It did not therefore matter whether he gained or lost votes by its advocacy, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसको एडवोकेट करके, उसकी सपोर्ट करके उसको वोट्स मिलती हैं या नहीं मिलती। In his inaugural address, we find an echo
to those peoples in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help themselves for whatever period it is required because it is right. और उनके इनॉग्रल एड्रेस जब वो प्रेसिडेंट बने उसके बाद उन्होंने जो फर्स्ट स्पीच दी उसमें भी ये एको करते थे ये आइडिया उसके उन्होंने मतलब इन आइडियाज़ को रिपीट किया था कि ये जो लाइन्स हैं उसी स्पीच में से ली गई हैं कि मिज़री में से निकलने की जो कोशिश कर रहे हैं पूरे ग्लोब का मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके लिए हम हेल्प अपनी प्लेज करते हैं, वादा करते हैं और तब तक के लिए वादा करते हैं जब तक उनको उसकी रिक्वायरमेंट है। प्रेज़िडेंट केनेडीज़ इंटरेस्ट इन एंड फ्रेंडशिप फॉर इंडिया इज़ वेल नोन। It antedated his accession to presidency several years. It originated not so much from a visit to India in the early 1950s as from a subsequent desire to understand the problems of the world, of which economically underdeveloped world forms so great a part. तो प्रेसिडेंशियल ईयर्स से पहले से भी ही वाज इंटरेस्टेड इन इंडिया ही लाइक्ड इंडिया एंड उसका जो इंटरेस्ट था ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिज सिर्फ उसके फर्स्ट विजिट से ही ओरिजिनेट नहीं हुआ जब उस कि एक बार विजिट किया और उसके बाद उस वो ध्यान नहीं दे रहा ये इस तरीके से नहीं था उसकी सब्सीक्वेंट डिज़ायर उसके विजिट के बाद भी उसके अंदर डिज़ायर थी वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना और उसके लिए इंडिया को समझना ज़रूरी था क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पार्ट था। इन स्टडिंग दीज़ प्रॉब्लम्स इंडिया बिकेम नेचुरली फोकस ऑफ अटेंशन और इन प्रॉब्लम्स को अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड के लोगों की प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हुए इंडिया उसका नेचुरली एक फोकस पॉइंट बन गया। Not only did it contain more people than the continents of Africa and Latin America put together, but it had made the choice clearly and unequivocally of following the path of democracy. सिर्फ इतना ही सिर्फ पॉपुलेशन की बात नहीं थी कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से भी ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है, पर इसलिए भी इंडिया इम्पोर्टेंट था कैनेडी के लिए क्योंकि अनइक्विवोकली मतलब यूनानिमसली इंडिया ने डेमोक्रेसी को चूज़ किया था एज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट वाज़ devoting more of its energies and in a more enlightened way to the removal of the curse of poverty than many other countries somewhat similarly placed। और इंडिया अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को बाकी देशों से भी काफ़ी बड़ी मात्रा में डिवोट कर रहा था पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। There was also the president's admiration for Jawaharlal Nehru. He referred in his very first speech to Congress to the soaring idealism of Nehru and the ideas for which, whether in India or on the international scene, our late Prime Minister stood. और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी रेफ़र किया था अपनी फर्स्ट स्पीच में एंड जो कांग्रेस को दी थी उनकी जो पार्लियामेंट है, हमारी जगह पार्लियामेंट है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वो कांग्रेस में एड्रेस करते हैं। जैसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं कांग्रेस। टू द सोअरिंग आइडियलिज्म ऑफ नेहरू एंड जो सोअरिंग मतलब बहुत राइजिंग आइडियलिज्म ऑफ नेहरू को रेफ़र किया था जॉन एफ कैनेडी ने कि that he respected that idealism of Nehru and the ideals for which, whether in India or on international scene, our late Prime Minister stood. और उन आइडियल्स के को भी वो रिस्पेक्ट करते थे जिसके लिए अपने देश में और इंटरनेशनल लेवल पे जिनको अपने देश में और इंटरनेशनल लेवल पे जवाहरलाल नेहरू सपोर्ट करते थे ये भी उनको पसंद थे जॉन एफ कैनेडी को
His knowledge of basic problems of India and his clear understanding of the difficulties of economic development under the democratic system made him naturally a vigorous proponent of foreign aid to India. तो इंडिया की जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी और उसकी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज की क्लियर अंडरस्टैंडिंग कैनेडी को एक बहुत बड़ा सपोर्टर बनाती थी कि अमेरिका की एड देने के लिए कि अमेरिका की ज़्यादा से ज़्यादा एड इंडिया को मिलनी चाहिए एज लॉन्ग एज 1960 he co-sponsored a resolution in Senate of the United States along with Senator Cooper और उनका अपर हाउस जहाँ जैसे जहाँ राज्यसभा है वहाँ पे है सेनेट और लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और कंबाइंड बोलते हैं वो कांग्रेस हम बोलते हैं पार्लियामेंट तो एज लॉन्ग एज 1960 तक उसने को स्पॉन्सर किया था एक रेजोल्यूशन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पेश हुआ था सेनेटर कूपर ने पेश किया था इट्स प्रियम्बल एक्सप्रेस इन वर्ड्स अंडरस्टैंडेबल बाय द यूएस कांग्रेस इज अप्रोच टू अस और उसका जो रेजोल्यूशन का प्रियम्बल था उसमें वो किस तरीके से इंडिया की सपोर्ट करता है वो रिफ्लेक्ट हो रहा था और ये प्रियम्बल यहाँ पे बीके नेहरू ने मेंशन किया है वेयर एज द कंटिन्यूड वाइटैलिटी एंड सक्सेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज अ मैटर ऑफ कॉमन फ्री वर्ल्ड इंटरेस्ट politically because of our 400 million people and vast land area, strategically because of her commanding geographical location, economically because of her organized national development effort, and morally because of her heartening commitment to the goals and institutions of democracy. तो इन तीन चीज़ों के लिए जो उन्होंने मेंशन की है फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उस टाइम पे 40 करोड़ थी पॉलिटिकली इसलिए होना चाहिए सेकेंडली स्ट्रेटेजिकली क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन बहुत ही क्रूशल जोग्राफिकल लोकेशन पे है इंडिया एंड इकोनॉमिकली क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड नेशनल डेवलपमेंट का एफर्ट हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में एंड मॉरली चौथा कि बिकॉज ऑफ हर हार्टनिंग कमिटमेंट टू द गोल्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी कि मॉरल कमिटमेंट है डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस को लेके इंडिया की तो इन चार रीजंस की वजह से अब हम क्या होना चाहिए हम सेंटेंस के इतने लंबे सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं वेयर एज द committed vitality and success of the Republic of India is a matter of common free world interest. इंडिया के रिपब्लिक ऑफ इंडिया की सक्सेस फ्री वर्ल्ड के इंटरेस्ट में है फ्री वर्ल्ड जहाँ पे डेमोक्रेसी है अमेरिका में ये टर्म कई बार यूज़ होती है खासकर कोल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत रशिया के टाइम पे वो उनको फ्री नहीं मानते थे क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी उनके अकॉर्डिंग तो फ्री वर्ल्ड के इंटरेस्ट में इंडिया की ग्रोथ ज़रूरी है और उसके उसने 4 कारण दिए हैं कि क्यों इंडिया इम्पोर्टेंट है। In my quest to gather external finance for fulfillment of our third five-year plan, Senator Kennedy before 1956 and President Kennedy after 1961 was one body to whom I could turn unhesitatingly for advice, counsel, guidance, and help, and it always came in unstinting measure. Indeed, his representations on our behalf to foreign governments were sometimes more vigorous than they appreciated. तो दोबारा आते हैं लाइन के स्टार्टिंग पे इस पैराग्राफ के इन माई क्वेस्ट टू गैदर एक्सटर्नल फाइनेंस थर्ड 5 ईयर प्लान के लिए एक्सटर्नल फाइनेंस चाहिए था इंडिया को एंड बी के नेहरू वॉज एम्बेसडर टू यूएस फ्रॉम इंडिया तो सेनेटर कैनेडी 1960 बिफोर 1956
1956 से पहले वो केनेडी सेनेटर थे, तब उनके पास जाते थे सपोर्ट के लिए और उस 61 के बाद ही बिकेम प्रेज़िडेंट। तो उस टाइम पे भी उनकी सपोर्ट के लिए उनके पास जाते थे एंड उनके लिए कोई हेजिटेशन नहीं होती थी कभी भी क्योंकि उनके इंडिया के बारे में जो व्यूज़ हैं हमने पहले ही देख लिए हैं। तो इसलिए बीके नेहरू श्योर थे कि वो उनकी हेल्प करेंगे, इंडिया की हेल्प करेंगे। और लास्ट इस पैराग्राफ का सेंटेंस में वो बताते हैं कि कई बार इस लेवल तक हेल्प करते थे कि वो दूसरे नेशंस प्रेशर फ़ील करते थे कि अमेरिका प्रेशर डाल रहा है उनके ऊपर इंडिया की हेल्प करने के लिए इकोनॉमिक लेवल पे। ही एक्सटेंडेड टू मी थ्रूआउट द प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्रेंड मतलब वो उनको फ्रेंड की तरह ट्रीट करते थे बीके नेहरू को। ही वॉज एक्सट्रीमली लिबरल विद हिज टाइम इवन एट मोमेंट्स ऑफ ग्रेट प्रीऑक्यूपेशन और टाइम का भी वो कोई कंस्ट्रेंट नहीं था उनके रिलेशन में और एक्सट्रीमली लिबरल मीन्स कि अगर उनकी कोई बिजी शेड्यूल था उसमें से भी टाइम निकाल के और एक्स्ट्रा टाइम देते थे बीके नेहरू को एंड टू वर्क विद प्रेसिडेंट कैनेडी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट pleasures any man could ever have had. He transacted his business at a very fast pace. His reading speed was 1200 words a minute. His capacity to retain facts was enormous. He attempted always to put himself into the other man's position so as not only to understand but to feel what the other side felt and was trying to say कि हमेशा अपने आप को दूसरे की जगह पे रखना सिर्फ समझ उनकी पोजीशन समझने के लिए नहीं attempted always to put himself into the others positions so as not only to सिर्फ समझने के लिए नहीं but to feel कि वो दूसरी साइड जो फील कर रही है वो क्यों फील कर रही है और वो क्या कहना चाहती है There was no unnecessary diplomatic verbiage, no talk of our two great democracies, of the bonds that united us, and of the common ideals for which we stood. Cliches, unfortunately, common in diplomatic life, particularly between those who do not fully share a common base. और ये जो फ्रेजेस यूज़ किए हैं आमतौर पे कोई हेड ऑफ स्टेट कहीं जाते हैं तो ज़्यादातर स्पीचेस में ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं पर वो ऐसे डिप्लोमेटिक वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे क्योंकि ये एम्प्टी वर्ड्स ही होते हैं आमतौर पे जैसे कि two great that we are two great democracies India and America we shared good bonds between us and we have common ideals that we stand for ये इनको बोलते हैं क्लीशे घिसे पिटे वर्ड बोल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कॉमन इन डिप्लोमेटिक लाइफ पर डिप्लोमेटिक लाइफ में ये बहुत कॉमन होते हैं और खास तौर पे वहाँ यूज होते हैं बिटवीन दोज हु डू नॉट फुली शेयर अ कॉमन बेस उन लोगों में जहाँ पे जो एक कॉमन ग्राउंड ही नहीं है जिनमें, तो डिस्कशन कोई की है, वो तो क्लोज़ डोर के अंडर होती है उनके बीच में जो कोई मीटिंग होनी है। पर बाहर आके वो ऐसे-ऐसे वर्ड्स बोल के चले जाते हैं, क्योंकि कोई सब्सटेंशियल उनकी डिस्कशन में से निकलता नहीं है। पर यहाँ पे ये वर्ड्स वो यूज़ नहीं करते थे क्योंकि इंडिया के साथ उनकी एफिनिटी थी। द प्रेज़िडेंट वुड ऑफ़न सम अप व्हाट आई वाज़ ट्राइंग haltingly and inadequately to say in a few clear, short and well articulated sentences. तो जो नेहरू कहना चाहते थे कई बार वो हेजिटेट करते थे उनको जहाँ कई बार इनएडिक्वेट हो जाता था उनका या कम या कई बार ज़्यादा पर वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड्स में सारा एक्सप्लेन कर देते थे कि इस सिचुएशन में ये होना चाहिए दिस ही वुड से इज योर केस देन ही वुड से दिस इज माइन वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर हाउ मच कैन यू मूव एंड हाउ मच कैन वी तो पूरी नेगोशिएशन का जो बात हो रही थी ये हमें इन प्लेस दिख रही है कि किस तरीके से वो दूसरे का पॉइंट समझ के अपना पॉइंट सामने रख के नेगोशिएट करने को हमेशा तैयार रहते थे आई
इट डिड हैपन समटाइम्स ऑफ कोर्स दैट नीदर ऑफ अस कुड मूव। कई बार ऐसा होता था कि दोनों साइड्स एडमेंट होती थी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे और कहीं पे कोई सिचुएशन मूव नहीं करती थी, किसी प्रॉब्लम में कोई सॉल्यूशन नहीं भी मिल पाता था। द प्रेज़िडेंट एक्नॉलेजिंग द डिफिकल्टीज़ विद व्हिच rulers of vast democracies are faced, wrote to our Prime Minister once saying, "Our respective countries, Mr. Prime Minister, are not easy to govern." तो कई बार इन प्रॉब्लम्स को देख के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेहरू को भी ये लिखा था कि हमारी कंट्रीज़ बहुत बड़ी हैं, उनमें बहुत अलग-अलग फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनको, तो उनको गवर्न करना भी इतना आसान नहीं है। He was informal in the extreme. There was the occasion when, owing to the informality of his welcome, a visiting Indian dignitary did not realize till a good 2 minutes after he had been talking to him that he was in the presence of President of United States. वो इतने इनफॉर्मल थे, एक्सट्रीम लेवल पे इनफॉर्मल थे कि एक बार एक इंडियन डिग्नेटरी ने रियलाइज़ ही नहीं किया 2 मिनट तक कि वो प्रेज़िडेंट से सीधे बात कर रहे हैं। वो टाइम ऐसा था कि टीवी इतना उस टाइम पे टीवी तो था नहीं इतना फ़ेमस सभी लोगों के पास, तो इतना वो पहली बार मिले होंगे उनसे, तो 2 मिनट तक वो पहचान ही नहीं पाए कि वो प्रेज़िडेंट से बात कर रहे हैं। प्रेज़िडेंट के बात करने का एक तरीका होता है। हेड ऑफ़ स्टेट्स की बात करने का एक तरीका होता है, बहुत ही फ़ॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, पर वो इतने फ़ॉर्मल इनफ़ॉर्मल थे कि वो उन्होंने रियलाइज़ ही नहीं किया उस डिप्लोमेट ने। His awesome responsibilities never allowed him to lose his sense of humor. उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ऊपर, पर फिर भी उन्होंने अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर को कभी लूज़ नहीं किया। There was always a smile and a twinkle and laughter, no matter how serious the subject under discussion might be. The president's wit was famous, and he enjoyed it a repartee, though few, and certainly not this writer, could equal him in this regard. तो उनकी विट बहुत फेमस थी और बहुत विटी थे और बहुत हाजिर-जवाब थे और ऐसी बातें ऐसे हाजिर-जवाब लोगों के साथ बातें करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। पर ये राइटर कह रहे हैं, बीके नायडू कह रहे हैं कि मैं कभी उनको इक्वल नहीं कर पाता था। उन उस लेवल तक हाज़िर-जवाब मैं नहीं था कम से कम। Jack Kennedy occupied the presidency for 2 years and 10 months. Like Jawaharlal Nehru, he was a leader ahead of his people, a leader who had seen a vision of greatness far beyond that which his country had so far achieved, and a leader who was dragging, as it were, a vast and somewhat inert mass of people behind him. वो सारा कुछ ये लास्ट वाला पोर्शन इम्पोर्टेंट है, वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है लाइन्स कि ही वाज़ dragging a vast, somewhat inert mass of people behind him. कि ऐसे लोगों को डेवलपमेंट की तरफ बेटरमेंट की तरफ खींच रहे थे जो कि अनविलिंग थे, या रियलाइज़ ही नहीं कर रहे थे कि जैसे कि फॉरेन एड को लेके कि कितनी ज़रूरी है prosperity all over the world for the for moral reasons as well as for the security as of people all around the world. Like Jawaharlal Nehru too, what the leader wished to achieve, he could not achieve in his lifetime. जवाहरलाल नेहरू की तरह ही जो वो अचीव करना चाहते थे जैक कैनेडी वो भी अपनी लाइफ टाइम में अचीव नहीं कर पाए. There was too much opposition, too great a desire not to change the old ways, too much distrust of new fang, fangled notions and ideas. बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन थी उनके आइडियाज़ को लेके और पुराने तरीके ओल्ड वेज़ पुराने जो परंपराएँ जो चलती आ रही हैं, काम कैसे होना है वो उनको चेंज नहीं करना चाहते थे लोग। डिसट्रस्ट बहुत था उनके नोशंस को लेके, उनके आइडियाज़ को लेके।
He would not, in spite of this vast personal popularity, take on straight conflict with the legislature. He would not, अपनी पॉपुलैरिटी के बावजूद वो कॉन्फ्लिक्ट में लेजिस्लेचर के साथ कभी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होते थे। अनलाइक इंडिया, यूएस में जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस का पार्ट नहीं है। तो जैसे जहाँ तो कांग्रेस में बैठ के पार्लियामेंट में बैठ के प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, उनके साथ डायलॉग भी करते हैं, वहाँ पे अलग तरीके से सिस्टम है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बिल्कुल अलग-अलग बॉडीज़ हैं। पर फिर भी वो कॉन्फ्लिक्ट में कभी लेजिस्लेचर के नहीं जाते थे। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रपोज़ल उनकी तरफ से है, प्रेज़िडेंट की तरफ से, वो कांग्रेस में पास होने के लिए जाएगा। अगर पास नहीं होता, तो कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि उनके पास होती है एक एग्ज़ीक्यूटिव पावर। तो बहुत सारे केसेस में फाइनेंसेस में और मिलिट्री वाले जो मामले हैं, उसमें प्रेज़िडेंट के पास वीटो भी होता है। अगर कांग्रेस कुछ डिसीज़न पास करती है, तो उसको वीटो करके प्रेज़िडेंट अपनी मर्ज़ी से भी डिसीज़न ले सकते हैं, किसी देश को सपोर्ट करने के लिए या ना करने के लिए। तो बट ही नेवर went in a straight conflict with the legislature. He would not, much to the disappointment of his liberal friends, appeal to the people over the heads of Congress as Franklin Roosevelt had done. वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो वो प्रेसिडेंट थे वो भी अमेरिका के, उनकी तरह कांग्रेस को अपील नहीं करते थे किसी लॉ को पास करने के लिए या किसी कोई डिसीजन लेने के लिए। ही हेजिटेटेड टू डू सो, फॉर ही इंसिस्टेड दैट द नैरोनेस ऑफ हिज electoral victory showed that the country had not given him clear mandate in the favor of all the things he wanted to do. उनकी इलेक्टोरल विक्ट्री बहुत कम वोट से जीते थे और इसलिए वो हेजिटेट करते थे क्योंकि उनको लगता था कि उनकी उनको देश के लोगों ने क्लियर मैंडेट नहीं दिया था। तो इसलिए जो ऑपोजिशन पार्टी है उसके व्यूज़ को भी उनको कंसिडर करना चाहिए। He was hoping, it seems obvious, to achieve in his second term. He would undoubtedly have been elected by an unprecedented majority, all the objectives for which he was preparing the country during his first term. फर्स्ट टर्म के दौरान जो वो जिसके लिए लोगों को तैयार कर रहे थे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो फुलफिल करना चाहते थे क्योंकि अनडाउटेडली उन्होंने जीतना ही था अकॉर्डिंग टू बीके नेहरू। और ये कैंपेन के दौरान ही उनके ऊपर अटैक हुआ था वेयर ही डाइड। दैट अपॉर्चुनिटी नेवर occurred, but the preparation had not gone in vain. The new frontier was has not been reached, but the road to it has been opened. And there is little doubt that President Kennedy has had so abiding an impact on American mind that there is no other road that America will in future follow. तो वो अपॉर्च्युनिटी तो कभी आई नहीं पर जो प्रिपरेशन वो करके गए थे वो फिजूल नहीं गई। न्यू फ्रंटियर एक नया फ्रंटियर खुला है अपॉर्च्युनिटीज़ का देश के लिए और उनका जो इम्पैक्ट था जो एंड देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट प्रेज़िडेंट केनेडी हैज़ हैड अबाइडिंग अबाइडिंग एन इम्पैक्ट ऑन द अमेरिकन माइंड। उनका अमेरिकन माइंड के ऊपर अमेरिकन लोगों के माइंड के ऊपर इतना इम्पैक्ट था दैट देयर इज़ नो रोड दैट अमेरिका विल इन फ्यूचर फॉलो। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो अमेरिका जिस पे अमेरिका चल नहीं सकता। उनकी पॉलिसीज़, उनके आइडियाज़ इस तरीके के थे कि उन्होंने काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ खोली, लोगों को काफ़ी अलग-अलग तरीके से सोचने के लिए इंस्पायर किया। As one crosses the Memorial Bridge over the Potomac going from Washington to Virginia, one observes a flame directly in front on the hillside, standing sentinel over the mortal remains of this great man. May it burn forever as a symbol of the ideals for which he stood and a source of strength to those who follow them. उनकी जो जहाँ पे उनको दफ़नाया गया है, वहाँ पे एक मेमोरियल ब्रिज में
अ, एक फ्लेम है जो जल रही है, कंटिन्यूअसली जल रही है और बीकानेरू कह रहे हैं कि ये सबको मेड बर्न फॉरएवर। ये बर्न करती रहे हमेशा, मतलब ये सबको इंस्पायर करती रहे, जॉन एफ कैनेडी की याद दिलाती रहे सबको, और वो सारे लोग उनके आइडियल्स को फॉलो करें जिनके लिए वो हमेशा खड़े रहे और लोगों को उस फ्लेम से स्ट्रेंथ मिलती रहे। तो ये था ऐसे जॉन फिtzgerald कैनेडी बाय बीके नेहरू। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।